Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, sir. एक तो शीतलहर ऊपर से कोरोना, अपना ख्याल रखो सारे। Sir, मुझे तो हो गया. I am positive. I got my result today. Yeah, mild symptoms, but it's quite crazy, you know. And it was nothing. Runny nose, fever भी नहीं था मुझको. बहुत ज़्यादा गला खराब. And runny nose था. And tiredness feel हो रहा था. We thought let's just do it. खांसी हो रही है काफी. And yesterday I got it done. आज positive है. Viral load 24 है. But I've got it. मतलब और ऐसा नहीं है कि हम घूम रहे थे. We were very careful. But कहीं से तो हुआ है. Everybody like maids को भी. I told my maid today उसका भी पूरा जुकाम हुआ. I said करा लो भाई. You know, it's good to be just at home and rest. But बहुत हालत बुरी है सर दिल्ली में तो. Every like is just like rampant. बहुत ही हालत बुरी है. हमारे घर में सब कर रहे हैं. एकदम ही हो रहा है जो हो रहा है सारा कुछ. And you have been tested twice for COVID and Omicron separately or one test? No. So one test right now happened. वो जीन उन्होंने अभी ये नहीं बोला Omicron है. But क्योंकि I also consulted a doctor online, so she's given me like all the medicines. Fab flu. Today is my first day. She told me first day have 8 tablets of Fab flu. मतलब आज मैंने 13 गोलियां खानी है सर. आप सोचो. मतलब antibiotic she's put me on. She's given me 2-3 things and Fab flu भी डाल दिया है. And 8 गोली 2 दिन 1 दिन 8 गोली कल से 4 गोली खानी है. मतलब I'm like it's like a meal. And I have very mild symptoms. I mean, अभी तक it's okay, but फिर भी you have to be careful. Steam and everything. Yeah, that all that I'll मतलब आज ही पता चला तो अभी तो थोड़ा सदमे में ही था कि suddenly अरे it seemed fine क्या हुआ, but yeah, so we are isolating, but it's quite it's like घर में आ जाए ना तो it's just हाँ डर ही रहता है बिल्कुल. मैं तो अभी तो बोल रहा था और आपने बोल दिया कि पॉजिटिव. हाँ so कह रहा था take care because I'm like अभी न्यूज़ जितनी भी सुन रहे हैं ना एक ही चीज है कि ऐसा मरीज तो होगी कि it is. But sir, इसमें mild और ये क्या नया है? मतलब everybody is tested mild. हमारे यहाँ पे भी 1-2-3 जन को हुआ है tested mild. न्यूज़ में लिख के आता है रिपोर्ट में कि tested mild. पता नहीं टेस्टेड माइल्ड नहीं है वो. टेस्टेड माइल्ड नहीं आ रहा. टेस्टेड पॉजिटिव है बट सिम्पटम्स आर माइल्ड. सिम्पटम्स आर माइल्ड. या सिम्पटम्स आर लाइक आई एम सिटिंग हियर तो मेरे को फीवर नहीं है बट आई हैव अ वेरी स्क्रैची थ्रोट एंड कॉफिंग हो रहा है. And runny nose था वो बंद हो गया because I've been taking I was taking cold medicines 1-2 दिन से क्योंकि you know so but it's my मतलब frankly I would not have gotten myself tested but चलो we like okay family है सब लोग हैं तो करा लेते because my son was also really coughing. He's negative. उसका negative है अब मेरा positive है. Are you isolated now fully? I'm isolated but उसका मैं फिर से कराने वाली हूँ परसों कल में क्योंकि I don't know he's coughing more. So I don't know. वो भी नहीं पता चलता कि क्या है because he is also then he needs to be on meds. But anyway, जो मेरे exposure में आया उनको तो दवाइयाँ खानी हैं. So some kind of you know she's given. But you don't know who's got it. आपको थोड़ा भी खौं हो रहा है तो just that you have to be careful. Yeah. You know medicines तो शुरू करने because अंदर तो कुछ गड़बड़ हो ही रही है ना. Just that. Booster dose is going to start by 11th I think. By 11th they will be starting. But हमारी बारी कहाँ आएगी अभी तो बहुत टाइम लगेगा for us our age group to come into the picture unless there is some जुगाड़. हाँ मैं भी कहता हूँ जुगाड़ करो फिर कोई. हाँ बस वही है that's the only thing and we worried about the kids. Take care. Thank you. It's quite worrisome that everybody has to be safe. Yeah. That is why I think wisely we took the decision of postponing. है ना? I think it's a good idea sir. ये एकदम burst हुआ है बिल्कुल last time. It was a perfect decision sir. Yeah. It burst like anything. मुंबई में काफी restrictions है हर जगह पे. दिल्ली में अब there's a weekend curfew, there's a night curfew. तो weekend curfew भी आ गया तो. यहाँ schools बंद हो गए पंजाब में. Even here. Notification आई है. Schools are no more operative now. So online ही होंगी classes. Even Maharashtra complete is like that. School 31st तक का notice दे रहा है. Further notice will come by that time.
Take care of your like family, yourself. All of you actually. I think थोड़ी देर घर सब बैठो. एक्चुअली सर घर ही बैठे थे, वी नॉट इवन गैलावेंटिंग, बट वो ये ना थोड़ा देर के लिए भी यू गो, किसको है अब दिल्ली में तो पता ही नहीं. सो इट्स नॉट दैट वी वर रियली गोइंग आउट, इट्स ऑल वर्क फ्रॉम होम फॉर मी एंड आई डोंट नो, माय हस्बैंड वाज द वन हु वाज गोइंग, अब नाउ ही इज आल्सो गोइंग खर वो भी करा रहेंगे कल टेस्ट, लेकिन आई डोंट नो, इट्स जस्ट लाइक क्रेजी. न्यू ईयर पार्टी भी हुई ना, सबने की है पार्टी. सर परिवार वालों के साथ ही की थी, अब वो सब भी टेस्ट करा रहे हैं अपने आप को, क्या करें. हवा में ही है आई तो. गेस हवा में ही है. चलो यही मान के चलो, ऐसी बातें करो जो होती है ना देसी टाइप बातें की, तो हवा में ही है भाई. हवा में ही है. चलो गुड. So please you don't talk much today, right? Yeah, Take sir. warm water. Take care of yourself. Yeah, sure. Thank you. Right. Okay, so the topic which we are going to take today is very interesting and very common topic, especially in education. If we talk, say that we all know that each one of us take inputs for our brain from different sources, through listening, through experience. We take inputs from our eyes. We take inputs from our this even fragrances. These are input to brain, info to brain, right? So even tasting is also giving me some input to my brain. So multiple, all these senses which we have, it gives inputs to our brain, right? And if we go from academic perspective, if we from that perspective we see, then three senses are very prominent. Your visual sensors, hearing, and touch and do things, your experience. These are very important from academic perspective. We all take input from all three ways: by hearing, by watching, by doing things. We all, but with our comfort with each style varies, and it's definitely different one to one. It's not same. We take inputs by watching, by hearing, by doing things, but our comfort definitely varies. And based on the comfort and ease in each style, we build preferences. If your brain supports you much, right, in audio inputs, you love to hear more than reading. If you're or watching, if your brain supports you much with visual senses, you love to take visual inputs than auditory or other aspects. Am I right or wrong? So we build a preferred style. ऐसा कभी नहीं होता कि कोई किसी तरीके से इनपुट लेता नहीं, मतलब मींस एक तरीके से लेता है, बाकी तरीकों से नहीं लेता. इनपुट वो तीनों तरीकों से लेता है, बट उसका प्रेफर्ड स्टाइल एक बन जाता है. प्रेफर्ड स्टाइल की खासियत क्या है? Preferred style say when you take inputs for your brain, you have better retention, your effectiveness of learning is more, you spend lesser time, you grasp more. और अगर आपको आपके worst approach से मैं अगर बोलूं तो आपकी least preferred approach है कि उससे सीखो, you will spend more time. Maybe it will not be in your memory lines properly. So retention, it will impact your speed, it will impact your interest also. Right? We all had our own style unknowingly, even today also. हालांकि हम most of us are out of our learning zone. We're not in a prime learning zone now. We definitely, you are attending these programs, you read, right? तो trainer coaches तो रहते हैं learning zone में, but adults usually नहीं रहते. Usually learning zone में कौन रहता है? Kids, student life तक, till your graduation, post graduation. And you must with the gradually with the passage of time you build your preferred style of learning. हम में से जब हम पढ़ते थे, हम में से कोई ऐसा होगा जिसको दोस्त भी अगर कोई बोल रहा है चैप्टर तो वो भी याद हो जाता, सुन के जल्दी याद होता. How many of you have had this style? से सुन के याद हो जाता, right? मतलब मेरा ऐसे कई हैं. मेरा एक दोस्त था, उसका स्थिति ये थी कि वो किसी के साथ बैठ जाता था और उसको बोलता था बोली चल, वो बोलता रहता था और वो सुनता रहता था. उसके नंबर ज्यादा आ जाते थे सुनने वाले के, बोलने वाले के कम. हम में से कोई ऐसा था जो बोल बोल के याद करता था? उसे याद ही तब होता था जब वो बोलता था. एनीवन?
नहीं, ये कितने ऐसे लोग थे जो मन में पढ़ते थे? नहीं सर, मुझे तो लिख के याद होता था। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा भी होगा जो लिख के याद करता था? यस सर। कोई ऐसा था जिसे चलते चलते भी पढ़ने की आदत थी, चलते चलते ही उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सीढ़ियों में बैठ के भी पढ़ लेता था, चलते चलते भी पढ़ लेता था? यस सर, ऐसा? इट्स मी। I do that. यस सर, आई डिड दैट। Read. हाँ. Right. So means we all had, like, अगर मैं आपको बोलूं, the one who was reading right by heart, अगर मैं उसे बोलूं बोल बोल के पढ़, उसका कंफर्ट में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर, पढ़ेंगे। यस सर। पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं कि जो 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 बोल बोल के पढ़ता है उसे बोलूं मन में पढ़, तो उसके कंफर्ट में फर्क पड़ेगा कि नहीं यस पड़ेगा? यस। तो अब अगर मैं जबरदस्ती करूं कि नहीं भाई तुम्हें मन में ही पढ़ना है, यू हैव टू रीड, तो टाइम ज्यादा लेगा, इसका मतलब उसी चीज को ग्रैस्प करने के लिए यस सर। ग्रैस्पिंग इफेक्टिवनेस कम होगी, टाइम ज्यादा लेगा। यस। इनपुट तो वो वहां से भी ले लेगा उस तरीके से भी, बट वो तरीका प्रेफरेबल नहीं होगा। अब कहाँ है, जिस जिस एरा में हम हैं, दैट इज एरा ऑफ कंपटीशन, एक्सीलेंस। इट्स नॉट एन एरा ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस, इट्स एन एरा ऑफ एक्सीलेंस, सेविंग टाइम, बीइंग इफेक्टिव। तो यहाँ इफ we get to know that what is my preferred learning style, my means a child's preferred learning style, it will be a very big advantage. आप में से कितने लोग होंगे जिनको लॉन्ग लॉन्ग आंसर लिखना पसंद नहीं था? सुन लो मुझसे, ऐसे कई बच्चे होंगे। And if you are going to test their knowledge based on their writing, then you may not be scoring better to them. Am I right or wrong? अगर आप उससे verbal expression orally पूछोगे तो they will respond at a length. So question linguistic का नहीं है, question is they're not willing to write. Sir, nowadays no, मतलब mostly kids are not interested in writing. Don't know why. उसका एक common reason है, which Many we have parents discussed. think that my child is not interested. Not willing to write. Willing to write. I'll tell you. उसका common reason ये है, these kids don't like slow activities. आज की पूरी generation नहीं. Why? Because they are highly engaged into high reflexive activities. जितना आप slow reflexive activities करवाओगे, कई चीजें improve होगी. Writing is one of them. जैसे एक common चीज बताता हूँ. Anyone who is hyperactive, जिसको पेरेंट आपके पास आया ये बोल के कि my child is hyperactive, तो उसकी हैंडराइटिंग कभी प्रेफरेंस रहेगी नहीं. लिखना विल नॉट बी अ प्रेफरेंस ऑफ दैट. क्यों? क्योंकि लिखना इज अ जॉब व्हिच यू हैव टू डू while being stationed, while sitting at one place, and they don't like to sit in one place, so they will never. अभी ये अभी mental और physical hyperactivity के cases are more which you see in your surroundings, right? तो लिखना उसकी जरूरत है, लिखना इज नॉट द प्रेफरेंस. जरूरत है, प्रेफरेंस नहीं है. Yes, Jagriti. Sir, just thinking loud. Sir, स्टेशन की बात तो होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज बच्चे घंटों बैठे रहते हैं टैब पर खेलते हुए या कंप्यूटर पे, वहां पे भी तो स्टेशन है. वहां उसकी एक नीड सर्व हो रही है ना, रिफ्लेक्सेस की. यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन. तो पेरेंट कहता है कि फिजिकली तो बैठा है बच्चा, नहीं फिजिकली बैठा है, और उसकी वही नीड कहाँ सर्व होगी? उसके मेंटल हाइपरएक्टिविटी में. रिफ्लेक्सेस फास्ट है, उसे स्लो एक्टिविटी पसंद नहीं है और कुछ ना कुछ करना उसे. उसका भी ब्रेन काम कर रहा है, वो इसी बच्चे का. हाइपर एक्टिविटी भी दो तरह की है, एक मेंटल और एक फिजिकल. फिजिकल वाला जो हाइपर एक्टिव है ना, वो ज्यादातर गेम खेलने पे नहीं बैठेगा, वो फिर कुछ ना कुछ कर लेगा बाद में एक्टिविटी. मेंटल हाइपर एक्टिविटी वाले के लिए प्रेफरेंस है, कुछ लिखने से ज्यादा मुझे ऐसी कोई चीज मिल जाए व्हिच इज फास्ट इन नेचर, दे लव टू डू इट. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. वही बच्चा जो रीड नहीं कर पा रहा, उसे आप कोई एनिमेटेड वीडियो दे दो उसी कॉन्सेप्ट का, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है वो, तो वो देख लेगा. चेक, ट्राई इट आउट. प्लेजर भी होगा, प्रेफरेंस भी होगी. वही बच्चा जिसे आपने बोला कि यू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसे रीड कर लो और उसी केमिकल रिएक्शन के चैप्टर का वीडियो दे दो, 3-4 वीडियोस which is explaining that entire concept. एक तो बाय डिफॉल्ट सबकी प्रेफरेंस वीडियो ही होगा, पर यहाँ पर उसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी मल्टीपल टाइम्स. उसकी कंसंट्रेशन, लॉन्जिविटी बढ़ गई क्योंकि उसको अपने प्रेफर्ड स्टाइल से मिल रहा है. राइट? नो? यस?
Right, sir. Do we say that by and large the preferred style of children is shifting to the visual high reflex activity? ऑडियो विजुअल Shifting? देखो बाय अगर पोटेंशियल देखें तो पोटेंशियल वाइज मोस्टली ऑडिटरी पोटेंशियल सबसे हाई है कंपेयर टू विजुअल काइनेटिक। विजुअल का पोटेंशियल सबसे कम होता जा रहा है। आई टोल्ड यू द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दैट, बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये जोन जो हमारा है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन वीक होता जा रहा है। Yes, yes. मतलब ये पहले बहुत स्ट्रांग था, स्ट्रांग जोन था हमारा, ये बहुत अभी वीक जोन बनता जा रहा है। The Right. occipital lobe is becoming Occipital, smaller. even in size it is getting smaller, Yeah, yeah, right? yeah. तो वो तो जनरेशनली बदला है, तो ये हर जनरेशन में आपको ये चेंज मिलेगी। तो उसकी प्रेफरेंस ऑडिटरी ज्यादा रहेगी, ऑडिटरी, क्योंकि सबसे बड़ा जोन ब्रेन का ये है। थिंकिंग के बाद जो बड़ा जोन है वो ऑडिटरी जोन है, टेम्पोरल, राइट? तो उसकी प्रेफरेंस ज्यादातर वही रहेगी। बट हमारा सिस्टम डिफरेंट है, सिस्टम इज डिमांडिंग, इट्स डिमांडिंग टू रीड, यस और नो? सिस्टम डिमांड कर रहा है। सिस्टम में ऑडिटरी भी है, पर उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ेगा। मैं अभी शेयर करता हूं आपसे कि क्या इंपैक्ट होगा क्लासरूम में, इवन उसके सिटिंग प्लान में, क्लासरूम सिटिंग प्लान में भी फर्क पड़ेगा। अगर एक ऑडिटरी लर्नर है, काइनेटिक है या विजुअल लर्नर है, उनका क्या इंपैक्ट है इवन जहां बिठा रहे हो आप उनको, राइट? आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू that there are three academic point of view, there are three prominent preferred styles of learning: auditory, visual, kinesthetic, physical, kinetic. If we go with the auditory style, we understood, by and large we understood people, those who prefer to learn through listening, either others voice or their own voice. Either they prefer to speak aloud or they ask somebody, mama mujhe suna do, right? या मुझे कोई ऑडिटरी चीज मिल जाए या विजुअल कोई वीडियो मिल जाए जैसे मैं सुन भी लूं, राइट? जरूरी नहीं कि वीडियो देखेगा भी, कई ऐसे होंगे जो चलते चलते सुन भी लेंगे, दे प्रेफर टू लिसन। अब ऑडिटरी लर्नर कौन है, उसकी प्रेफरेंस यूजुअली अगर आप देखना चाहते हो, हालांकि इसके लिए असेसमेंट टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स भी हैं इसके लिए, पर बाय लार्ज अगर आप देखो ऑडिटरी लर्नर कौन से होंगे, दे लर्न बाय लिसनिंग, लव डिस्कशंस, म्यूजिक, मोस्ट चांसेस है कि म्यूजिक लवर भी हो, speak in rhythmic pattern, talk to themselves while occupied, easily distracted by noise, क्योंकि इसको आवाज अगर ये सुनता है तो आवाज से ही तकलीफ होगी इसे। Extra voices, extra noises, enjoy reading loudly, enjoy others reading also, right? Can repeat and mimic tones, pitch and timbre, possibly, not all cases. Powerful speakers, mostly talkative, ये इनके usual traits होंगे। Not all the traits will be there in each individual, but these will be the visible traits. People, those who listen more, prefer to listen more, auditory learners, voice modulation अच्छी होने के chances हैं। But ये जो auditory learner है, इसको किस तरीके से पढ़ाया जाए कि they will have better grasping, better retention, effective learning हो? If they are in a loud environment, there are multiple voices are there, would they be able to grasp things comfortably? If they distracted by noise, जिसको इनपुट ऑडिटरी लेनी है, तो ये जितनी क्लियर इनपुट होगी उतना बेटर ग्रास्पिंग होगी। अगर डिस्ट्रैक्टेड इनपुट होगी तो डिस्ट्रैक्टेड रिटेंशन होगी। ऐसा नो? Right, sir. तो कैसे पढ़ना चाहिए इनको, इसके ऊपर you give suggestions, tell me. In a quiet room, they should have separate room with lesser Separate noise. room. Okay. They can, while studying, जब वो पढ़ रहा है, जब when they are reading aloud अपने किसी चैप्टर को, तो उसे रिकॉर्ड कर ले, ताकि कल को जब रिवीजन करने जाए तो अपनी आवाज को सुन ले, फास्ट हो जाएगी रिवीजन, क्विकर रिवीजन विल बी देयर, यस और नो? टाइम स्पेंड दोबारा नहीं होगा ना, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, दे कैन रिकॉर्ड देयर सेल्फ। पहले रिकॉर्डिंग डिवाइसेस नहीं थे, आजकल रिकॉर्डिंग डिवाइस इज प्रीटी नियर यू, जितने मर्जी रख लो, जितने मर्जी जीबी तक का डाटा आप कर सकते हो, राइट? सो यूजुअली इनके नोट्स अच्छे नहीं होते। आप में से अगर कोई भी ऑडिटरी लर्नर है आप में, तो उसके नोट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसका सारा ध्यान कहाँ है, मुझे सुनने में, उसका ध्यान लिखने में नहीं। उसका ध्यान कहाँ पे होगा, बिकॉज दे आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम प्रेफर टू टेक इनपुट्स ऑडिटरी, तो उसका सारा फोकस सुनने में है, ना लिखने में ना देखने में। आई गेटिंग
क्लासरूम में क्या होगा इनके साथ दिक्कत, नोट्स पुअर होंगे। इन पेरेंट्स को हम सजेस्ट करेंगे 2-3 सेटिंग्स करके रखो क्लास बच्चों के साथ, ताकि अपने इसके साथ शिकायत ये होगी कि दिस चाइल्ड्स होमवर्क विल दिस क्लास वर्क विल नॉट बी फिनिश्ड कंप्लीट, वो नोट्स नोट ना करे शायद चीजें, राइट। या जब कुछ पूछ रहे थे आप चेतना? नहीं, अच्छा, वही कि पुअर राइटर। अच्छा दूसरी चीज, आपके हिसाब से ऑडिटरी लर्नर को नजदीक बैठना चाहिए या फार बैठना चाहिए? नजदीक, Yeah, near. नजदीक से ज्यादा अच्छा सुनाई देगा ना। और एनी अदर व्यू? If they hear clearly, distractions कम रहेंगे। हम्म अगर वो दूर है तो distract जल्दी हो जाएंगे। वैसे तो अगर वॉइस इज रीचिंग एनीवेयर, सो दे कैन सिट एनीवेयर, राइट। तो विजुअल लर्नर के लिए जरूरी होता है कि नजदीक बैठे, देखे उसे प्रॉपर्ली, राइट। तो ये लर्निंग स्टाइल चेंज हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन हो सकता है, बिकॉज आई फील, आई डोंट रिमेम्बर पहले आई हाउ यूज्ड टू डू इट, बट आई थिंक नाउ I have become an auditory learner, मतलब podcast और listening and I like so ऐसा हो सकता है मिक्स हो या चेंज ना, हो बिल्कुल जाता हो है। सकता है, चेंज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर ये तो आपके एरा ऑफ लाइफ में प्रेफर्ड स्टाइल है, तीनों से इनपुट लेते हो आप, सुनते भी हो, देखते भी हो, करके भी। तो वन ऑफ देम इज अ प्रेफर्ड स्टाइल, काफी हद तक आपके कंफर्ट पे भी है। हो सकता है कि when you may be not an auditory learner, you are actually a this, but today for saving time, because you have a limited time, and it's very convenient. Yeah, right. I'm completely an auditory learner. I'm not at all a visual learner. Reading is my least preference, and most of the books I buy auditory books. मेरे पास पुरानी CDs पड़ी हैं बुक्स की। आप आजकल तो, पहले तो कार में आता था CD प्लेयर, अभी तो वो कार में भी नहीं आता। I have to convert it into, मैंने कोई रीड भी करनी है बुक, तो पहले उन CDs को मैं पेन ड्राइव में डलवाता हूँ, फिर मैं सुनता हूँ। नॉट अ रीडर, तो ऑडियो बुक्स ही खरीदी है, टाइम सेविंग है मेरे लिए आज। टोटली अ प्रेफरेंस, बट ऐसा नहीं है कि यू कांट रीड। मे बी टुडे आज यू सी दैट इजी, that is easy approach or a time saving approach, you go for that way. But इनके साथ auditory के साथ their focus, listen, understand from their ease perspective. If they are focusing on audio, they will not be focusing on other things. That is why the notes will not be good. They can sit anywhere, but they prefer it if they are sitting somewhere near the voice where properly it is audible. Consider finding a partner whose notes you can study from to fill in the gaps, and they can also record class lectures with teacher's permission, which is possible. Today it is possible, right? Online classes हैं, they can listen to the lecture again, because auditory के साथ ये भी दिक्कत है, अगर वो सुन रहा है, right, और उसके बाद वो किसी और बात में इन्वॉल्व हो गया, बात में, ऑडिटरी लर्नर कुछ भी करते करते सुन सकता है, वो उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इनपुट जा रही है जहां से जानी चाहिए। पर ऑडिटरी लर्नर को आपने बात में लगा लिया, अब ये एक जगह से कनेक्शन टूटा, दूसरी जगह फिक्स हो गया, यहाँ बात खत्म होगी तो दोबारा कनेक्शन रीजॉइन होगा, रिज्यूम होगा, तो बीच वाला सिस्टम, बीच वाला खत्म। आर यू गेटिंग मी? इनपुट मतलब इफ द चाइल्ड इज इन टॉकिंग और सो, दे आर मिसिंग दैट इन्फॉर्मेशन। विजुअल लर्नर के साथ कम होगा ऐसा, विजुअल लर्नर को बात भी कर लो, वो बात भी कर लेगा, पर उसको दिख रहा है, देख के इनपुट ले रहा है मेजरली, तो उसे फिर रजिस्टर जल्दी होता है उसका देखा हुआ, चाहे उस समय बात कर रहा हो। सो ऑडिटरी लर्नर कैन बी अ मल्टीटास्कर इन अदर थिंग्स, नॉट इन लिसनिंग टॉकिंग वाला काम, वहां वो मल्टीटास्क करने हैं, वहां से डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो चीजें। क्लियर? ये इनपुट्स हैं। इफ यू रिपोर्ट, अगर हमारी रिपोर्ट में लिख के आ रहा है दैट चाइल्ड इज हाईली एन ऑडिटरी लर्नर, these will be the tips which we'll be giving to parents कि आपका बच्चा जब पढ़े तो कुछ इस तरीके से पढ़े। They can add memorizing facts or dates by using a song, rap or rhythm. इनके लिए mnemonics अच्छा टूल है, mnemonics is a good tool, audio packs बना के। Make your own audio recording with keywords, concepts and review them whenever you're getting ready for test. I already told you, for revision and reviews, they can record their own recordings. While studying, they record themselves and they listen it later on while reviewing the facts, while doing revision. Possible? Nowadays, there are a lot of audio books that can also supplement your studies.
अभी जितने स्कूल पीडीएफ्स आ रही हैं उनमें ऑप्शन है, यू कैन कन्वर्ट दैट पीडीएफ इनटू ऑडिटरी. देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो पूरी पीडीएफ आपको सुना देंगे इन एनी लैंग्वेज. दैट कैन आल्सो बी अ गुड टूल व्हिच कैन बी यूज्ड. वी आर नॉट यूजिंग इट. कई पीडीएफ्स हैं जितनी जो पीडीएफ्स हमें ये जो पब्लिशर्स दे रहे हैं, जो बुक पब्लिशर्स, उनमें यूजुअली द फीचर है Ctrl+L दबाओ तो आपको सारा सुनाना शुरू कर देता है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी दे रहा है रिसेंट वन आपको ये फीचर. अडोबे दे रहा है आपको ये फीचर. अडोबे में फीचर है ये, तो दे विल क्लियर. अभी तो सॉफ्टवेयर्स बहुत है. ऐप डाउनलोड करो वो आपके पढ़ के सुनाना शुरू कर देती है सब कुछ जो लिखा है पीडीएफ में. राइट. When studying, read notes. Books aloud. Repeat the facts with your eyes closed. Speak it up. Right. Memory में जल्दी जाएंगी इनकी चीजें. Join a study group or find a study partner to review information, notes or text. दो लोग पढ़ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे तो जल्दी सीखेंगे. डिस्कशन जल्दी सिखाएगी इनको. Read aloud. Any other input if you have for auditory learners? टाइम का भी इफेक्ट होता है, जैसे नाइट स्टडी विल बी मोर बेटर. ये टाइम का ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ नाइट में ये होगा कि डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी. डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी तो ये, अदरवाइज कोई ऐसा कोई टाइम का इफेक्ट कोई नहीं. राइट. Is there some connection between them playing some sort of a music also in the background that enhances their learning, which has been my experience. I've seen ये people. ऑडिटरी लर्नर के साथ नहीं है, ये उसके साथ है जिसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है. Okay. अब एक ऐसा है Plus वो जिसका auditory राइट भी हो सकता है. मैं हाँ, और वो ऑडिटरी है. मान के चलो कि किसी का राइट टेम्पोरल लोब व्हिच इज हाँ. सपोर्टिंग म्यूजिक इज हाई एंड ही इज आल्सो एन ऑडिटरी लर्नर. उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट टू ईच ऑडिटरी लर्नर. Not. अब वो इसलिए जो ये केस बता रहे हो आप, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको कुछ ना कुछ पीस ऑफ म्यूजिक दिन में चाहिए, अदरवाइज दे फील अनकंफर्टेबल. Yes, yes. तो उनका वो म्यूजिक किसी एकेडमिक लर्निंग को सप्लीमेंट नहीं कर रहा, वो हाँ. उसके ब्रेन को सूद कर रहा है. Yes. रेडी कर रहा है, इजी कर रहा है, उसके लिए इनपुट्स लेना ब्रेन के लिए. There has to be a rhythm in the background for the. Those people. तो जिनका म्यूजिक हाई होगा हम उनको सजेस्ट करेंगे, नॉट टू ईच ऑडिटरी लर्नर. अगर मेरा बोला जोन स्ट्रांग नहीं है तो फिर दिक्कत भी हो सकती है. राइट. वैसे एक चीज बताता हूँ आपको, इंडियंस के टेम्पोरल स्ट्रांग है. आपको अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया में अगर हम 100 लोगों को क्वेश्चन पूछें कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक म्यूजिक, आपको क्या लगता है कितने % लोग कहेंगे यस आई लाइक? 98%. Yeah, 98%. most of them. Yeah. Most of them, right? Mostly will say we like music. So the idea over here is क्योंकि by default जो हमारा जोन है, नॉट इंडिया, अगर आप बाहर भी चले जाओगे तो वहां भी, बट क्योंकि हमारे ये टेम्पोरल काफी सपोर्टिव है. राइट. ये काफी सपोर्टिव है. दैट इज व्हाई वी आर लाइक आर मोस्टली वी लाइक म्यूजिक. सीखा नहीं हमने म्यूजिक, सीखा नहीं वो अलग बात है, सीखा सबने नहीं है पर पसंद सबको. That is why music is becoming that need. Everybody get, आपको बहुत बच्चे मिलेंगे जो कहेंगे जी म्यूजिक बैकग्राउंड पे लगा. ये काफी हद तक ट्रेंडी भी हो गया. सपोर्ट को मिले ना मिले, ट्रेंडी भी है क्या. जस्ट अब वो एक एसोसिएशन क्रिएट कर ली उसने, अपनी एसोसिएशन, साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. वो उसकी नीड नहीं है ब्रेन की, एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना ही लगाना है, अगर नहीं लग रहा तो मैं अनकंफर्टेबल हूं. तो एक साइको कनेक्शन हमने बिल्ड कर लिया, एसोसिएशन ही कहूंगा इसको मैं. जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं ये कोई ब्रेन की नीड नहीं है. सपोज मैं कोई बैकग्राउंड है जो मैं लगा के रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है. एग्जांपल सुनना कि अगर मैं कोई बैकग्राउंड लगा के रखता हूँ एंड आई मुझे ना कंफर्ट है उसके साथ, मैं अच्छा दिखता हूँ कुछ कपड़ों में या कुछ, कल को वो बैकग्राउंड नहीं है तो कई लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. ये सुनो, कोई चीज नहीं है मेरे पास, कोई वो चीज नहीं है या कुछ, हमने वो एक साइको कनेक्शन बिल्ड किया, एक एसोसिएशन बिल्ड कर ली, वो मेरी जरूरत नहीं है. जैसे मैं उस दिन एक कॉन्सेप्ट सुन रहा था, बड़ा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मिनिमलिज्म. राइट.
तो जिसने उसे बिल्ड किया, आई फॉरगॉट हिज नेम, दैट फेलो टोल्ड कि आई वियर one type of cloth, one color of cloth, one style, one jeans, and that's because I don't want to clutter my this Almira. I have one color sweatshirts, one color t-shirts, one color shirts, and one color jean, but multiple, so that in not to be confused, I pick up that I wear it. That's his idea of minimalism. He's not cluttering his brain with a lot of choices and with a lot of stuff in the Almira wardrobe. तो ये उसका कॉन्सेप्ट था. अब उसने कहा कि मैं इवन बैकग्राउंड भी नहीं बदलता, कि व्हाई टू बी कंफ्यूज्ड, दिस कलर इसके साथ एक बार एक मैच ढूंढा मैंने कि ये बेज कलर इसके साथ सूट करता, अब यही जाएगा. दैट्स देयर आइडिया. तो मैं क्या सोचता हूं, ऐसे लोग कई बार एसोसिएशंस में फंस जाते हैं, फिर जिस दिन वो कलर नहीं पहनेगा उसे लगेगा कि पता नहीं क्या है, कुछ कम कम है. ऐसा होता हमारे साथ. बट ये साइकोलॉजिकल नीड है, ये मेरी बायो नीड नहीं है, बायोलॉजिकल नीड नहीं है, मेरी ब्रेन की जरूरत नहीं है. मैंने साइकोलॉजिकली वो पैटर्न क्रिएट कर. बच्चों के साथ होता है, बड़ों के साथ होता है, कई लोगों के साथ हमें से वहम कह देते हैं, इसी तरह वहम है. वहम नहीं है, एक एसोसिएशन क्रिएट कर देते हैं, उसका कंफर्ट है उसके साथ. सर्टन पेन्स, सर्टन बैग्स, है ना, कई की रिंग्स के साथ हो जाता है, मेरा की रिंग गुम हो गया, ऐसा हो जाता है कई लोगों को, राइट. Sir, if even Mark Zuckerberg follow this, उनके पास सिर्फ ग्रे टी शर्ट्स ही हैं उनके वार्डरोब में. बिल्कुल सही है आपकी, वो भी आइडिया ऑफ मिनिमलिज्म ही है. और बीइंग क्लियर, उसे सुबह ये सिरदर्द नहीं रखनी कि मैंने क्या पहनना है. हमारे पास एक हमें होता है सुबह ये क्या पहनना है, वो कह रहा मैंने एक स्ट्रेस अपने दिमाग से रिमूव कर दिया तो मुझे सुबह क्या पहनना. दिस इज रियली ब्यूटीफुल आइडिया. पीपल दोज हु डू बिग थिंग्स, उन्हें अपनी जो जितना क्लटरिंग है उसे क्लीन अप तो करेंगे तभी बड़ा काम कर पाएंगे. अगर वो इन्हीं चीजों में फंसा रहा कि सुबह उठ के क्या पहनना है, तो कहता हूँ बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा. पहली चीज ये क्लीन की. ऐसी कई चीजें होंगी उसने की होंगी, आई एम श्योर, राइट. तो कई लोग हैं, बट वो आइडिया सुनना आप प्लीज, मिनिमलिज्म के ऊपर पढ़ना. Yeah, it's a beautiful concept actually. कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुल है. मैं people are moving more. Yes, sorry. जिस दिन से मैंने सुना है, मैंने अब लाइक आई वाज टॉकिंग टू, आज की बात है, मेरे वाइफ ने कहा कि आप ना ये कुछ इस साल आपने कुछ वो नहीं लिए, जैकेट्स नहीं ली, तो पुराने पिछले साल वाली डाल रहे हो. उससे जैकेट्स वैसे भी काफी देर चल जाती हैं. तुमने कहा जी जरूरत क्या है, मतलब पहली बार कहा होगा मैंने, अगर उसने सजेस्ट किया तो कहता चल जाएगा तो शॉपिंग कर ही लेते हैं. नहीं मुझे जरूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज दैट आइडियाज, मैंने 3-4 दिन लगातार उस आइडियाज को सुना, 2-4 वीडियोस देखे उसके ऊपर लगातार, तो मुझे आई फाउंड इट वेरी हाईली पॉजिटिव. पैसे बचाने वाला आइडिया है, टाइम और पैसे दोनों, राइट. सो व्हाई नॉट. सो माय पॉइंट ओवर हियर इज व्हिच आई कम टू द पॉइंट, हम एसोसिएशंस बिल्ड कर लेते हैं. दैट एसोसिएशंस आर नॉट गुड किसी के लिए भी, हमारे लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए तो, और फर्स्ट यंग 5 इयर्स में तो बिल्कुल अच्छी एसोसिएशंस. क्लियर. चलें आगे. जो रिपोर्ट हमारी होगी, मैं आपको आज कॉपी भेजूंगा रिपोर्ट की सैंपल. उस रिपोर्ट में व्हाट वी डू, हम एक तो आइडेंटिफाई करेंगे. पहले तो मैंने आपको बता दिया कि देयर इज नो कोर स्टाइल, देयर इज अ प्रेफर्ड स्टाइल. देयर इज नो कोर स्टाइल, देयर इज अ प्रेफर्ड स्टाइल. तो सीखने के तो तीनों तरीके हैं, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेटिक. ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई ऑडिटरी है तो विजुअल नहीं होगा, वो काइनेटिक नहीं होगा, परसेंटेज ज्यादा कम ज्यादा हो जाएगी, राइट. पोटेंशियल परसेंटेज कम ज्यादा हो सकती है, किसी का ज्यादा ऑडियो में पोटेंशियल है, किसी का विजुअल में, किसी का काइनेटिक में हो सकता है. पॉसिबल और नॉट. पर ऐसा नहीं है कि somebody is an auditory learner तो विजुअल लर्नर हो ही नहीं सकता. नो, इट्स नॉट इन दैट, राइट. और उनका प्रेफर्ड स्टाइल डिफरेंट हो सकता है. तो जो रिपोर्ट में एक तो ये स्टडी टिप्स दिए होंगे, प्लस ये भी बताया होगा कि व्हाट आर द बेस्ट टेस्ट टाइप्स फॉर दिस चाइल्ड. बेस्ट, अगर इसको टेस्ट करना है, इसकी नॉलेज को, अब ऑडिटरी लर्नर की बेस्ट नॉलेज को टेस्ट करना है, and if you want to test their knowledge, oral tests are better tests, right. written से better oral है. और worst test type क्या होंगे वो भी बताया होगा. बेस्ट टेस्ट टिप्स क्या है और वर्स्ट टेस्ट टिप्स क्या है वो भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया होगा. ठीक है, इसमें नहीं लिखा हुआ. सेकंड स्टाइल विच इज विजुअल. हमारा एकेडमिक सिस्टम
अभी तक भी सबसे ज्यादा इसकी डिमांड करता है। और मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ अस आर ऑडिटरी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट? So these auditory children are the ones who find the comprehension exercises difficult because that requires silent reading in exams. एब्सोल्युटली, जरूरी नहीं है कि साइलेंट रीडिंग, लॉन्ग पैसेज उसके लिए वैसे भी था, उसे सुनाने वाला चाहिए रीडिंग से ज्यादा। तो ऑब्जर्व, वो माइक्रो ऑब्जर्वेशन, उसकी जो हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन कहते हैं पैसेजेस में, मिसिंग होगी। तो उसके लिए हम उनको कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। रीडिंग अलाउड का मतलब But बहुत in होता the नहीं। examination, so they cannot read aloud. So they have to read. There can be a reading which can be allowed without being loud, right? Means you have to read it, you have to use your tongue, but you shall not be loud enough to be able to. But somehow, if I'm speaking it out, maybe in a easy way, it is somewhere reaching that way. बोल के दिखाओ, करके देखो रवि, इसको पढ़ो जरा लाइन को, कोई एक लाइन पढ़ो इसमें से। When studying, read notes or books out loud. Speak it up. You can speak without even being loud. So you have to use your tongue at that time. So we tell them, use your tongue, speak it out, but not loud enough to be heard. ठीक है? विजुअल लर्नर्स के साथ दिक्कत ये कि ये इनके साथ रीडिंग इनका ईज एरिया, पर विजुअल लर्नर के साथ भी एक और अभी दिक्कत नहीं है, मतलब एक इनका दे लाइक लॉट ऑफ कलर्स इन विजुअल्स। तो सिर्फ रीडिंग हम ये नहीं कह सकते ऑल visual learners will be good at reading. No, if that reading has a lot of colors, graphics, so they will love to read, right? So visual association ज्यादा होंगी, जैसे इनकी मेमोरी लाइंस में वो चीजें जल्दी जाएंगी जो देखी है, जो सुनी है वो नहीं। ऑडिटरी के लिए कौन सी जाएंगी? जो सुनी है। तो शायद ऑडिटरी के लिए नाम याद रखना इजी होगा, फेस याद रखना मुश्किल होगा, और इसके लिए फेस याद रखना इजी होगा, नाम याद रखना मुश्किल होगा। ये रास्ते नहीं भूलते कभी विजुअल लर्नर्स, रास्ता याद हो जाता है इनको। तो लोकेशंस, प्लेसेस, पीपल, दे नेवर फॉरगेट फेसेस। गुड आई डिड। सो मेमोराइज बाय विजुअल एसोसिएशंस। विजुअल पेग्स अच्छे बनाएगा ये, अगर मेमोरी में जाए तो। विजुअल चीजें जो देखी हैं चीजें वो जल्दी याद होंगी, दूर तक याद रहेंगी, दैट वे, राइट? गुड स्पेलर्स यूजुअली, बिकॉज उसने स्पेलिंग ये नहीं भी याद किया तो उसने देखे हुए हैं, उसे पता क्या गलत है। स्पेलर्स अच्छे होंगे ये, अदरवाइज ऑडिटरी के साथ स्पेलिंग इश्यूज भी आ सकते हैं if they are not good at visual that way. So they should avoid cursive writing. They should avoid cursive writing. Why? Because cursive writing does not support photographic memory. मैं समझा नहीं क्यों, कोई particular reason behind that? Because when we read, we are reading everything in print script. और जब ये लिखना अगर कर्सिव है, so again that translates. तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी को सपोर्ट नहीं करता है ऐसे कुछ। तो फोटोग्राफिक मेमोरी और विजुअल मेमोरी में कोई फर्क है? मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी किसे बोल रहे हो? एक बार देखा और वो याद रहेगा ऐसे। While learning spellings also, they don't need to. Maybe ये शायद ये जो आप बता रहे हो बहुत young age में होगा applicable, but fonts doesn't matter, right? Later on, अगर देखा fonts is not going to get matter, but हाँ शुरू में हो सकता है कि that can be a confusion for a child that they have seen it in a different font and now they are watching it in a different font, that way ये हो सकता है, but otherwise not later on. Initially just because the visual, अब इसके लिए दिक्कत भी यही है, ऑडिटरी के लिए ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शन थी, विजुअल के लिए विजुअल्स विल बी अ डिस्ट्रैक्शन। बट जितना हम नॉइसेस मल्टी मिक्स्ड सुनते हैं उतने विजुअल मिक्स्ड नहीं मिलते हैं। गेटिंग नहीं? रीडिंग करते हुए आप सिर्फ रीडिंग करोगे, सिमिलर इनपुट्स आप कहीं और से लेने वाले, दैट वे। तो विजुअल लर्नर के लिए स्टडी टिप्स यही हैं कि दे शैल हैव सम, वो जो हाइलाइटर्स, कलर्स हाइलाइटर्स, नोटिंग इट डाउन, नीचे से अंडरलाइन कर लिया। इनकी अगर आप किताब उठा भी लोगे तो देयर विल बी गेट लॉट ऑफ नोट्स ऑन दैट, स्टिकी नोट्स और हाइलाइटर्स, अंडरलाइन किया हुआ। प्लेन किताब नहीं मिलेगी आपकी, आपको पढ़ी किताब में भी बहुत कुछ अपना लिखा भी मिलेगा या हाईलाइट किया हुआ मिलेगा।
They systematically copy all notes in class, so you don't have this problem, right? Proper highlighter use करना इनको suggested है. Vocabulary with yellow concept, pink new vocabulary, yellow key concept, ऐसे कुछ suggestion दो, they will have better understanding. Flashcards will be great help for them to revision. Revision के दिन they need not to reread. They have to just use key tip topics, flashcards. Sir, what is yellow key concept? कौन सा? Yellow key concept means? ये तो वैसे ही है कि अगर आप कोई highlighter जो use करते हैं उनके लिए क्या है, it's a new term which they are not much aware of, तो उसे वो क्या करते हैं, मैंने green कर दिया या कोई और color दे दिया, so that next time what I'll do, I'll pick up the book and I'll only go for the green color highlights things, so that कि मैं इसकी vocabulary देख लूं. Dictionary उठाएगा, green colors को उठा लिया, तो pink इसने दिया हुआ new vocabulary का कोई भी color दे सकते, new vocab which I don't know the meaning, I'll go later on, I'll find out the right meaning of that word. कोई concept नया तो उसको कोई color दे दिए ताकि reread करते वक्त उसे सारी किताब दोबारा ना पढ़े. So it's more of a study tips which people give. जब हम कहते हैं ना कि people those who are actually मैं एक concept बताता हूँ. एक हम कहते हैं read, revise and review, है ना? ये concept है हमारी education. पर 90% revision is rereading, 90%, which is actually not. जब आप बच्चों को बोलो ना रीरीड अपना रिवीजन करो तो क्या करते हैं, रीरीड करते हैं, yes or no? Yes, sir. But that's not revision. Revision is just going through the broader concepts, key concepts of the topic. आपको उन्हीं को रिवाइज करना है, बाकी तो आपका है. और हमारे कॉन्सेप्ट में क्या है, हम रीरीड करते हैं, टाइमिंग ज्यादा हो, अपना टाइम वेस्टेज ज्यादा हो. तो रिवीजन, रिव्यूइंग एंड रीडिंग, रीरीडिंग सारे कॉन्सेप्ट मिक्स्ड हैं. अगर if a child who is being taught how to make highlighters, how to make flashcards, how to highlight key concepts, they need not to waste time on rereading. They will just review the key concepts and things will be in place. तो ये जितने बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करते हैं या कुछ ऐसा भी, जो हायर क्लासेस में जाके आजकल जो आप सुनते हो ना कि स्टडी टिप्स पे वर्कशॉप्स होती हैं, वो वेरी स्मार्ट टिप्स दे गिव किड्स टू स्टडी, वर्केबल टिप्स, छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स. इवन हाउ टू टेक ब्रेक, दैट इज आल्सो बीइंग टॉट. बिकॉज़ आज बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, अगर उसको स्ट्रेस भी है कि कल मेरा एग्जाम है या विद इन अ मंथ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माय कंपटीशन एग्जाम, उसे स्ट्रेस है, दे आर रेडी टू गिव टाइम बट दे आर अनएबल टू कंसंट्रेट. उन्हें सही तरीके नहीं पता पढ़ने के. डू यू एग्री? आप अभी रिसेंट कोई किताब पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग अ बुक, और जब भी आप किताब पढ़ते हो तो हमें से कई होंगे जिनको नींद आनी शुरू हो जाती है, कोई डिस्ट्रैक्शन हो गई, घर में कोई काम आ गया, कुछ आ गया, बीच बीच में से थोड़ी देर बाद आपको पॉइंट नोट करना पड़ता है कि कहाँ छूटा, एक बार फिनिश अप ही नहीं हो पाती चीजें, कंप्लीशन की तरफ नहीं जा पाती. होता कि नहीं होता? यू वांट टू रीड बट यू आर अनेबल टू रीड. ये होता है हमारे साथ कि नहीं होता? We want to read but we are unable to concentrate, है ना? ये कई बार तरीके के कारण भी हो सकता है, हर बार ब्रेन की गलती नहीं है, तरीका भी गलत हो सकता है. आप पढ़ने लग जाओ और फोन साथ में रख लो, पढ़ पाओगे? तो ये ब्रेन की दिक्कत तो नहीं है, ये तो तरीके की दिक्कत है. तरीका इज नॉट राइट. कीप योर फोन असाइड एंड रीड. अब ज्यादा बेटर पढ़ पाओगे. एटलीस्ट दैट फोन इज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन. अभी आपने इंस्टाग्राम पे फोटोग्राफ पोस्ट किए हैं और अभी पढ़ने बैठ जाओ, यू वॉन्ट बी एबल टू. यू आर वेरी मच हुक टू दैट प्लेटफॉर्म. आपको कुछ कमेंट आ गए होंगे, अभी दो चार नोटिफिकेशन आई तो है, उसी पे लाइक आए होंगे. लेट मी सी. यू विल कीप ओपनिंग अप, कीप चेकिंग इट अप, हाउ मेनी लाइक्स आर देयर, हाउ मेनी कमेंट्स आर देयर. यस और नो? मैं छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ अप्रोच, स्टाइल, एनवायरमेंट. हमें एनवायरमेंट ही बदलना है, राइट? इवन स्टडी, जो इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स पे जितनी वर्कशॉप्स हो रही हैं, हम किसी दिन आई विल शेयर दैट कंटेंट विद यू, जो वो करते हैं, राइट? तो वो इवन जो आपके एकेडमिक प्लान्स हैं वो बनाने में भी हेल्प करते हैं. हाउ यू कैन
draw that plan so that it get executed. हमारी प्लानिंग ही कई बार ऐसी होती है कि वो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती. हम जब करते हैं ना शेड्यूलिंग, बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, शेड्यूलिंग करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे वो शेड्यूलिंग ही गलत तरीके से होती है, वो जो एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती. And they give suggestion on that, how it has to be scheduled, how it has to be done, and mostly it is quite workable. And those who are genuinely interested, the approach and style will not be a hindrance. That will not be a problem. वो ठीक किया जा सकता है, right? Kind of food you have to have when your exam days are there. The kind of even not only food, even mostly we have tea, है ना? टी लेते हैं हम, पीते हैं पढ़ते वक्त. Yes. Tea and coffee. किस लिए? Just to be active. Yeah. Same way आजकल बच्चे चाय कॉफी के साथ साथ they have this Red Bull and all energy drinks, है ना? आज के बच्चे लेते हैं. हमें नहीं, हमें लगता है एक तो होता है active brain, which is good. If you add 1 tea, like 2 cup of teas or 2 cup of coffee, 1 Red Bull, it gives you that immediately your brain get active, right? But अगर वो dosage ज्यादा भी हो जाए तो भी नहीं आप input ले सकते, तो भी आपका brain dry हो जाता है, you know that? आप कॉफी ज्यादा पी लो पढ़ते स्टिमुलेट हो जाता है ना, Over ज्यादा stimulate. स्टिमुलेट. अगर आप कॉफी की 2-3 डोज कप्स ले लो, आपका ब्रेन ड्राई हो जाएगा, इनपुट ही नहीं ले रहा, वो रिटेन ही नहीं कर रहा कुछ. You are able to read, you are not sleepy, feeling sleepy, but things are not going inside, तो उसका भी कोई फायदा नहीं. ये बच्चों को ही नहीं पता, उनको तो ये है कि बस I shall do something not to get sleepy because मेरा एग्जाम है. I getting me? तो ये जितने टिप्स दिए हुए हैं vocab के, re-reviews की, mostly these effective study habits workshops they explain. और वो ये भी कहते हैं कि let's first also check with your preferred style and do it with that. Use graphic organizers for concepts, diagrams, pictures, and symbols. They think under graphs they understand things better. Reduce auditory distraction when you study. Turn off the iPod. Prioritize work by writing down assignments and due dates as a list. Cross off as you complete it. That way, their work will be finished early, in a planned way, systematic way. Clear? आजकल in today's time, अब ये generational challenge है कि पहले एक तो उससे colors पसंद है, multiple colors. If it is there in the books, they will love it, right? It will be their preference. But abhi kya hai? They have other options available. So this YouTube videos, this academic videos will be their choice if it is as an option available to them. So multimedia educational tools, जैसे ये जितने आजकल चल रहे हैं digital learning platform, that will be highly recommended to them. हालांकि वो दोनों को recommended है, visual और auditory दोनों को, तो उनके लिए preferred होगा ये. Clear? Auditory के लिए comparative to visual ज्यादा है. क्यों? Visual तो फिर read कर सकता है, auditory will not read. तो ये जो tools हैं, multimedia educational tools, ये digital learning tools will be highly recommended to auditory. अगर second preference देखी जाए तो visual. Clear? Any query on this? सर ये जो blend होते हैं, Blend. who have blended patterns, I mean learning modes. So how does that go? I mean distraction point of view से भी और वैसे. Blend like, कौन सा? अगर तो ये visual auditory का blend है तो very basic blend है. Good, हाँ. तो उनके लिए तो सारी चीजें ऐसी मिक्स ही होंगी. दोनों चीजें अच्छी हैं उसके लिए, वो कभी दोनों को प्रेफरेंस देता, सुनने को भी और उसको, राइट? ब्लेंडेड इज गुड. दिक्कत अब आती है वो एक ही स्टाइल को ऑप्ट करना पसंद करता है. एक हाई है, बाकी लो है. एक बहुत हाई है, बाकी उसके लीस्ट प्रेफर्ड एरियाज है. फिर उससे उसी इस केस में डिस्ट्रैक्शंस का, जैसे हमने कहा कि ऑडियो द वन हु इज ऑडिटरी, दोनों ही बॉदर करेंगे. दोनों से अगर इनपुट लेता है तो दोनों ही बॉदर.
so the level of distraction will be higher, can we say that? हाँ, chances will be high. Okay. अगर वो दोनों से इनपुट है तो दोनों की डिस्ट्रैक्शंस होंगे उसकी। मतलब किसी एक चीज का लाइक साउंड कोई आ रहा है या कोई विजुअल चेंज हो रहा है, then the distractions that child can be distracted easily. Absolutely. मैं जैसे एग्जांपल higher level. जैसे एग्जांपल दूं, आप if you are right now doing a training program and if you are a visual learner, तो आपके सामने से कोई निकल रहा है या कुछ हो रहा है, you will get distracted. आपके अराउंड कोई आपको सामने से कोई निकला, you will get distracted. Yeah. Right. I am a visual learner and for me it's one of the case. आप ना भी देखा आपने, आपको मूवमेंट हुई है ना कोई, it will distract. ऑडिटरी लर्नर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। उसके लिए दिक्कत कब आएगी, जब आवाज आएगी। अगर मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ, मेरे अभी निकलते रहते हैं सामने से, कई बार कभी इधर को जा रहे हैं, कभी इधर को, इट डजंट बॉदर मी मच। बट हाँ, कोई आवाज आएगी उनकी या किसी और की, तो इट बॉदर्स मी, तो मैं मना करूंगा। राइट, क्लियर? सर, आई एक्चुअली अंडरस्टूड दिस नाउ, क्योंकि मेरा बेटा, आई थिंक ही इज ऑडिटरी लर्नर, तो अगर एक रूम में सब बैठे स्टिल ही कैन कॉन्सेंट्रेट, लेकिन जब बात करते हैं तो ही सडनली जम्प्स इन एंड आंसर्स, तो सब बोलते हैं कि हाँ देखो इसका तो ध्यान इधर ही है, बट नाउ आई कैन कोरिलेट, इसको फर्क नहीं पड़ता है if everyone is sitting there, but the moment we start talking then he gets distracted. Absolutely. क्लियर? और दूसरी चीज मैं वही बोल रहा था, दिक्कत तब आएगी ज्यादातर, देखो इसको सिस्टम के साथ भी देखो, सिस्टम इज समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। अगर मैं हार्डली ऑडिटरी लर्नर हूँ और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें विजुअल ज्यादा है, तो मेरा शुरू में कंफर्ट कम होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, स्कूल्स इज अ वेरी ब्लेंडेड, स्कूल एजुकेशन इज अ वेरी ब्लेंडेड अप्रोच। उसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी है, उसमें ऑडिटरी भी है, टीचर लेक्चर भी देता है, और विजुअल्स भी, पीपीटीज भी हैं, बोर्ड भी है। तो स्कूल इज अ वेरी ब्लेंडेड अप्रोच। बट व्हेन यू गेट इनटू कॉलेज, विजुअल ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, सारा ऑडिटरी हो जाता है, वहाँ लेक्चर कॉन्सेप्ट ज्यादा है। ये सुनो, कॉलेज इज मोर ऑफ लेक्चर। आजकल तो पीपीटीज चलनी शुरू हो गई हैं कॉलेजेस में भी, पहले नहीं थी। डू यू एग्री? यस। तो कॉलेज वाज, तो ऑडिटरी लर्नर के साथ कॉलेज इज ओके। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, जहां तरफ विजुअल थे। जैसे अगर मैं थोड़ा पीछे चला, जब हम पढ़ रहे थे तो स्कूल में ज्यादा विजुअल था और कॉलेज ऑडिटरी था। तो विजुअल लर्नर के लिए कॉलेज में जाके दिक्कत आती होगी, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। ग्रास्पिंग, आर यू कनेक्टिंग विद दिस ऑन दिस? तो अगर तो ब्लेंडेड है तो उसके साथ कहीं भी किसी एनवायरनमेंट में मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किल तब आएगी जब आप एक तरह के हो और आपको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जो आपके अकॉर्डिंग है। So I can share my example. Like I am a visual learner, and eventually college में जाकर, whenever teacher used to, I mean our lecturers used to teach us, I used to go back to the library and read that content. Otherwise, तसल्ली हुई नहीं, it is lost. It is lost. The concept is lost, and that's where I got into more of physics on my own, because स्कूल में तो उतना ही, मतलब कॉलेज में तो उतना ही पढ़ाएंगे जितना कोर्स बुक में है। अदरवाइज यू हैव टू गेट डीपर, देन यू हैव टू रीड ऑन योर ओन। आई होप लाइक ये क्लियर हो गया आपको कहां दिख। वेरी क्लियर। जरूरी नहीं है कि हमें एनवायरनमेंट मिल रहा है। मैं घर में भी बताता हूँ, घर में भी हो जाता कई बार कि वी गिव एब्सोल्युटली डिफरेंट एनवायरनमेंट टू दैट चाइल्ड, राइट? So sir, in this case, there can be a possibility where the child is a visual learner or vice versa, and they may not find the college or any other institute where they are going. The mode of the mode of delivery will be different. तो उस केस में बच्चा बोर हो जा रहा है या उसको मजा नहीं आ रहा, उसे मजा एक्चुअली, जब मैं जो प्रेफर्ड स्टाइल नहीं मिल रहा, ये कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है? अगर if I'm not learning from my preferred style, मेरी स्पीड पे फर्क पड़ेगा, स्पीड पे। दूसरा, मेरी ग्रेस्पिंग और रिटेंशन पे फर्क पड़ेगा। ग्रेस्पिंग और रिटेंशन मतलब अगर मैं अपने प्रेफर्ड स्टाइल से कुछ भी चीज इनपुट ले रहा हूँ तो ज्यादा देर रिटेन रखूंगा, अगर नॉन प्रेफर्ड से ले रहा हूँ तो रिटेन भी कम देर रखूंगा। और थर्ड इज प्लेजर। My pleasure is lost. My pleasure is lost, right? Right? Are you getting me? My pleasure is lost. So I'm not finding pleasure in learning. That is a. अब ये तीनों चीजें इम्पैक्ट हो जाएंगी तो मुझे मजा नहीं आ रहा बस। So there is this what we say कि कॉलेज में जाके उसका ग्रेड कम हो गया या something like that. That can be possible for those because of this reason also.
Yeah, that can be one reason, right? True that. Multiple, जैसे मैं example देता हूँ, people those who are highly dominant, वो self directive mode में काम कर लेते हैं. पीस सीकर को क्या चाहिए? डायरेक्टिव्स. अब इसका भी सुनना ध्यान से. अब वो कॉलेज में जाएगा तो पूछने वाले कम हो गए. स्कूल में पूछने वाले ज्यादा थे, कॉलेज में कोई पूछ ही नहीं रहा, करो करो नहीं करो ना करो, राइट? तो उनके फर्क पड़ता है. वो भी एक रीजन हो सकता है कॉलेज में जाके मार्क्स कम होने का, राइट? आई गेटिंग मी? करेक्ट. बट ये भी एक रीजन हो सकता है जो आप बता रहे हैं. कुछ भी रीजन हो सकता है. बट हम वी कैन कनेक्ट टू दीज थिंग्स इफ वी अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. अगर आप ग्रास रूट से किसी चीज को समझ रहे हो, फिर सिचुएशनली आप उसको कहीं भी उसकी एप्लीकेशन देख सकते हो. सो बहुत बार ये होता है ना सर कि कोई काउंसलिंग के आया एंड दे से दैट बच्चा स्कूल में अच्छा कर रहा था एंड देन इवेंचुअली इन द कॉलेज ग्रेड्स हैव रिड्यूस्ड. पॉसिबली पेरेंट को वही लगता है कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. हाँ, नहीं, रीजन डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है, रीजन सेल्फ डायरेक्शंस भी हो सकती है. दैट कैन बी वन. हाँ, वही बोल रही हूँ कि दिस कैन बी आल्सो अ रीजन कि वो बाहर दूसरी तरफ ये हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, बिकॉज उसका मोड ऑफ आई मीन एब्जॉर्प्शन इज नॉट फेवरेबल. बिल्कुल. तभी हमने अभी एक हमारा देखो स्कूल सिस्टम देखा जाए, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया, वेस्ट में तो फिर जूनियर कॉलेज कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो वो भी नहीं है. नॉर्थ में तो नॉर्थ में बच्चा 10+2 तक बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में है. या सुनो, जहाँ वीक ऑन वीक पूछा जाता है क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ट्यूशन वाला पूछ रहा है, कोचिंग वाला पूछ रहा है, स्कूल वाले पूछ रहे हैं. या सुनो, और नेक्स्ट ईयर जिंदगी बदल जाती है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं. ये बड़ा ना, ये एकदम होता है उसकी लाइफ में, ये ग्रेजुअल प्रोसेस में. टेक्निकली होना क्या चाहिए अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा, जो अभी शायद हो सकता है कि न्यू एज एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को अकोमोडेट किया जाए, बिकॉज उन्होंने 4 साल दिए हैं. अगर ये 8 to 12 वाला जो जोन है, इस जोन में गाइडेंस मेंटरिंग कॉन्सेप्ट आ जाए, जो कॉलेज में होता है. कॉलेज में कोई टीच नहीं करता, इट्स मोर ऑफ गाइड्स एंड मेंटर्स व्हिच दे आर नॉट आस्किंग यू हैव टू अप्रोच देम. इट्स मोर ऑफ अ गाइड्स रोल, जिसको आपको अप्रोच करना आपकी जरूरत पे. वो आगे नहीं पूछने वाला तुमने किया नहीं किया. वो स्कूल में जैसे जैसे फिर उसके लिए इजी होगा बच्चे के लिए. नहीं तो कॉलेज एनवायरनमेंट में जाते ही हम कहते हैं ना बच्चे को हवा लग गई या कुछ हो गया. इट्स जस्ट दैट बिकॉज नाउ नोबडी इज आस्किंग, डिस्ट्रैक्शन बढ़ गई, पूछने वाला कोई है नहीं. पीस लवर के लिए बड़ी मुश्किल होती है बिकॉज दे वर्क इन अ रिएक्टिव एनवायरनमेंट. वो रिएक्टिव उसमें काम करता है, प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ नहीं करता. उससे करवाना पड़ता है, पूछने वाला ही है नहीं. पीस सीकर के लिए हम कहते हैं ना, रिव्यू विल इंक्रीज द पेस ऑफ वर्क, मॉनिटरिंग विल इंक्रीज द पेस ऑफ वर्क. वहां मॉनिटरिंग खत्म होगी, रिव्यू खत्म हो गया. तो अगर ये 2 साल दिए जाए उसे, +1 +2 के मॉडल को थोड़ा बदला जाए, अगर फिर वो इट विल बी वेरी इजी फॉर देम टू अकोमोडेट इन नेक्स्ट एनवायरनमेंट. इमीडिएटली होता है उसकी लाइफ में. तो कॉलेज में जाके अगर कोई किसी के मार्क्स कम हो, उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, राइट? और ये भी हो सकता है एक रीजन. ऑल सेट, चलिए गो अहेड. तो ग्रेड्स के लिए तो असेसमेंट टाइप भी मैटर करेगा ना. जैसे जैसे कॉलेज में जाते हैं, टीचर्स और प्रोफेसर से इतना पर्सनल टच नहीं रहता है. तो जो भी एग्जाम में लिखेंगे बच्चा उसी पे असेस होगा. अभी भी ऐसे ही है. स्कूल में कौन सा कोई टीचर के पर्सनल व्यू के नंबर दे सकते हैं? वो नंबर तो उसी चीज पे देंगे जो लिख के आया या जो सुना के आया, है ना? बट देन इट्स अ फ्लॉ के बहुत बड़ा ये है. डेफिनेटली बहुत बड़ा फ्लॉ है. दे आर ट्राइंग टू कवर अप दिस. दे कांट डू इट फुली. हालांकि जो सब्जेक्टिव असेसमेंट्स जो आई थी, अपना जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का जो इन्होंने परसेंटेज बढ़ाई है टोटल, उसमें अब अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 35-40% कर दिया ऑब्जेक्टिव असेसमेंट को, राइट, ओवरऑल. तो वो विच इज गुड उनके लिए जो बहुत ज्यादा राइटिंग में अच्छे नहीं है, और उनके लिए जो लिंग्विस्टिकली इतने स्मार्ट नहीं है, उनके लिए इट्स अ गिफ्ट, क्योंकि दे आर नॉट बीइंग अंडरजज्ड, अंडरवैल्यूड. पर सिस्टम को जीरो डाउन पूरी तो क्लीन नहीं किया जा सकता ना. ये कुछ ना कुछ परसेंटेज तो रहेगी, और पर्सनल व्यू हो ही नहीं सकता. हमने सब्जेक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म कर दी है एकेडमिक असेसमेंट से. Formative assessments and project-based assessments did give some scope, I think. इसीलिए इंडियन कॉन्सेप्ट में
रोट लर्निंग, क्रैमिंग की जरूरत ज्यादा है, जरूरत फॉरेन में नहीं है, राइट? हमने स्टेप वाइज मार्किंग कंसेप्ट कब लेके आए, इंडिया कब लेके आया? स्टेप बाय स्टेप असेसमेंट सीबीएसई ने कब इंट्रोड्यूस किए? एनीवन? 2008 I think 2010-11 में, 10 okay जब सीसीई के साथ ही के आने के बाद ही हुआ था स्टेप बाय। और फॉरेन में मुझे नहीं पता, शायद मैं Jeez, जब हम long छोटे थे time. तब से। I know. हमारे यहाँ अभी मेरा पॉइंट है कि कुछ चीजें बदली तो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ हर चीजें अपनी ईज के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती हमारे हिसाब से, जो सही चीजें हैं वो नहीं। और दूसरी चीज, हम कितनी चीजें ठीक कर लें, इनके पास ठीक करने के लिए बहुत कुछ और है। यहाँ आप कई बार वीडियोस देखते हो, नेचर को नटूरे फटूरे पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे स्कूल्स भी हैं इंडिया में, राइट? तो स्कूलिंग के नाम पे ऐसा भी हो रहा है। तो आप वो जो पॉलिटिशियंस है ना, उनकी लड़ाई कुछ और है, वो हमारे लिए काम नहीं करते, दे डोंट वर्क फॉर अस। वगैरह तुम्हारा स्टार्ट कुछ और है। तुम रो रहे हो कि मेरी मासी नहीं है, यहाँ कोई ऐसा भी जिसकी माँ नहीं है, पहले उसको माँ दे, फिर तुम्हारी मासी का इंतजाम करेंगे। ये हुआ ना कि तुम तो कर रहे हो एडवांस चीजों की बात, बेसिक्स ही नहीं मिल रहे किसी को। दे आर स्ट्रगलिंग विद द बेसिक्स, सो दे हैव टू गिव बेसिक्स फर्स्ट। बट हाँ, ओवरऑल this is a growth, this is a sign of growth of any country when they start working on these type of projects. It's a growth sign, क्योंकि जो बेसिक्स जिसके क्लियर हो जाएंगे तभी वो एडवांस पे काम करेगा। वो बड़ी बाकी कंट्रीज एडवांस चीजों पे क्यों काम कर रही हैं? बिकॉज़ दे आर नॉट नो मोर स्ट्रगलिंग विद द बेसिक्स। आवर कंट्रीज सो फार struggling with the basics कई जगह पे। Then they will talk about the population and the spread of the people is too large, I think. Too large, and diversity is there, lot of diversity. Convincing one strata and is different, and with same approach convincing other strata is very different. So that's a challenge which go. Sad part is कि हमारा बेसिक करते करते इतना टाइम हो जाएगा कि हम कभी एडवांस पे पहुंचेंगे ही नहीं। That's the sad part. तब तक आज का एडवांस फिर बेसिक बन जाएगा। वही, that's true, because our base is so, and तभी तो like it's so sad because we'll always be an emerging economy because our population तो बढ़ती ही जाएगी, वो कभी कंट्रोल ही नहीं हो पाएगी। So it's like we'll always be the way we are. So that is what I'm telling you. This country population is a strength, it is also a limitation. It's also a limitation. क्योंकि ये एक economics का rule है, when there's a large number, the application take times. और आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि जब तक उसकी एप्लीकेशन होगी अगली चीज के लिए हम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा नहीं, जैसे चाइना इज वे हेड फ्रॉम अस ऑन दिस। पॉपुलेशन तो उनका भी चैलेंज है, पर उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की, पहला पॉइंट। और प्लस कम्युनिस्ट कंट्री है सर, हमारी तो पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट है ना, वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है वहाँ। वो जैसे हमारे यहाँ कोई सड़क या कोई पुल तब बनता है जब उसकी जरूरत होती है ना। जब तक वो कंप्लीट होता है तब तक वो जरूरत से भी ज्यादा ओवर यूज होना शुरू होता है, अगले की जरूरत पड़ जाती है और बढ़ेगी। वो कंट्रीज बस आज की जरूरत के हिसाब से चीजें डेवलप नहीं कर रहे, वो अगले 20 साल, बस ये फर्क है। हमारा पुल बन के जब रेडी होता है तो इतनी उसको 6 साल लग जाते हैं पहले तो बनने को, जरूरत पहले से होती है, 6 साल बाद और जरूरत बढ़ जाती है, अब वो छोटा लगना शुरू होता है। ये तो यार कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी तो और जरूरत है, इसको और लंबा करने की, पुल को और चौड़ा करने की जरूरत है। So that is the problem. चलो गुड। यस पूर्णिमा जी। सर ये लर्निंग स्टाइल करियर काउंसलिंग में भी इम्पोर्टेंट रहेगा ना, गाइड करने के लिए? प्रेपरेशन के लिए, करियर काउंसलिंग में नहीं, प्रेपरेशन में ज्यादा काम करेंगे। तो मतलब जो उनकी लर्निंग स्टाइल है उनके अकॉर्डिंग ही अगर वो थोड़ा करियर सिलेक्ट करें बच्चे तो ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा? देखो करियर में जाके लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ने, टेक्निकली करियर में तो एक्शन में आ जाएगा। करियर तक पहुंचने के लिए जरूरत है, करियर तक पहुंचने के लिए लर्निंग स्टाइल हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल यू सजेस्टेड समबडी टू बी इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो उसे यूपीएससी क्लियर करना है तभी जाएगा वहां पे। यूपीएससी क्लियर करना इज नॉट इजी, दे हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट प्रिपरेशन में इफ दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, इफ दे वांट इफेक्टिवनेस, सो दिस लर्निंग स्टाइल इज गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट इफ दे गो विद द प्रेफर्ड स्टाइल, राइट। करियर में बहुत ज्यादा नहीं मैं कह सकता कि हेल्प करेगा, कुछ करियर्स में हो सकता है कि उनका प्रेफर्ड स्टाइल अगर हो तो कुछ हेल्प हो जाए, अदरवाइज नॉट मच। जैसे एक ट्रेनर है मेरे जैसा और मेरे साथ है फॉर एग्जांपल आरजू, राइट। हम दोनों का स्टाइल डिफरेंट है,
काम हम एक जैसा करते हैं, तो हमारा इनपुट के तरीके में फर्क होगा, और तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। ऐसा नो? यस। ये होगा ना? जस्ट अ मिनट। तो लाइक जैसे ये जो विजुअल लर्नर होते हैं, ये अभी जो नए इरा के कोर्सेज करियर चल रहे हैं उसमें ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे? जो विजुअल लर्नर्स है जी। हाँ, मतलब विजुअल लर्नर के लिए आप देखो, मतलब क्या, एक लर्निंग इज इनपुट, ये जो जिसकी हम बात करें, इट्स एन इनपुट प्रेफरेंस, नॉट आउटपुट प्रेफरेंस। आई गेटिंग मी? तो जो आप न्यू एज करियर में बोल रहे हो ना, जैसे डिजिटल, आई कैन वेल अंडरस्टैंड यू हैव केप्ट डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड दीज इन माइंड, तो वहां विजुअल इंटेलिजेंस बड़ा अच्छा कर लेगा। अब दोनों में फर्क है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आउटकम की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इनपुट की, इनपुट प्रेफरेंस की। ऐसा जरूरी नहीं है कि एन ऑडिटरी लर्नर विल बी गुड एट लिंग्विस्टिक, नॉट पॉसिबल, नॉट मैंडेटरी। दोनों फर्क है। इनपुट अच्छी हो सकती है, आउटकम अच्छी ना हो शायद। हैव यू अंडरस्टूड माय पॉइंट? सर ऑन दिस पॉइंट, अगर जो ऑडिटरी है लर्नर, वो अगर अकाउंटिंग में चला गया वे ही हैज टू रीड अ लॉट, तो वो मिसमैच हो सकता है। हाँ, ऑब्जर्वेशन कम होगी उसकी, है ना? तो उसे इनपुट लेनी बहुत ज्यादा, देख के ही चीजें सीखनी। बिल्कुल है, मैं ये तभी कह रहा हूँ कुछ एरियाज में है हेल्पफुल, हर एरिया में नहीं कह सकते इनपुट होगी। कुछ एरियाज में है जहाँ पर बहुत ज्यादा माइक्रो ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड है और वो रीडिंग में अच्छा नहीं है, माइक्रो ऑब्जर्वेशन, तो वहां दिक्कत आएगी। बट फिर भी मैं ये बता रहा हूँ, हम अभी ज्यादा करियर से ज्यादा लर्निंग स्टाइल को एकेडमिक से जोड़ते हैं। इसकी जरूरत भी, अगर आज मुझे पता चल भी जाए ना मेरा लर्निंग स्टाइल कौन सा प्रेफर्ड है, मेरी लाइफ में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ I get to know about my daughter, it is going to help me. लेकिन जैसे जब सब्जेक्ट चूज करते हैं लाइक इन 11th क्लास, थोड़ा हम सजेस्ट देख सकते हैं कि अगर बच्चा कौन से स्टाइल में है, लर्निंग स्टाइल में, अभी तो एकेडमिक चल रहे हैं ना, मैं तभी तो बोल रहा हूँ करियर तक पहुंचने के लिए जो चीजें चाहिए उसमें तो काफी हेल्प करेगा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तब तो वो एकेडमिक में ना। अभी करियर में आने के बाद इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। करियर तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है, प्रेपरेशन के लिए और उसको करने के लिए। जैसे people those who are highly kinetic, वो प्रैक्टिकल लर्निंग में अच्छा काम करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंड ऑल, राइट? सर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे काम किया जा सकता है ना, बिकॉज इफ वी नो द स्ट्रेंथ वी आल्सो नो समवेयर द वीकनेस इज मे बी दिस। आप ना अभी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आउटपुट से जोड़ो, इनपुट से नहीं। इनपुट वो फॉर द यंगर एज ग्रुप वेयर आई एम कंपेयरिंग योर एग्जांपल, कि नहीं, आप इनपुट की बात कर रहे हो या आउटपुट की बात कर रहे हो? मींस उसकी इंटेलिजेंसेस की बात कर, हाँ करेक्ट, इंटेलिजेंसेस की बात कर रहे हो, इंटेलिजेंसेस की बात कर रही हो, और उनके लर्निंग स्टाइल की भी। तो फॉर अ यंगर एज ग्रुप इफ वी कम टू नो कि उनका ये स्ट्रेंथ है, लाइक ऑडिटरी लर्नर है, सो इन दैट केस ऑडिटरी को और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और वीकनेसेस को भी हम वर्कआउट करके उसको स्ट्रेंथ तो नहीं बना सकते बट इम्प्रूव कर, हाँ, एक लेवल पे लाके रख सकते हैं जहाँ पे वो एक उसकी वीकनेस ना बने, उसके वजह से वो ड्रॉबैक ना बने, ड्रॉबैक ना बने। बट जाकृति, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये इसीलिए मैंने वर्ड एक टर्म यूज की, प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल, एंड इट इज वेरी मच पर्सनल टू द यूजर इटसेल्फ। मैं मान के चलो कि मैं ऑडिटरी में भी अच्छा हूँ और मैं विजुअल में भी अच्छा हूँ, पर मेरी प्रेफरेंस ऑडिटरी है, हूँ तो मैं विजुअल में भी अच्छा, तो मुझे ज्यादा चीजें अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चाहिए, तब मजा आएगा मुझे। बात समझ रहे हो आप? करेक्ट, डिसीजन मेरा तब होगा। या करेक्ट, गॉट इट। ये पॉइंट, तो as अगर a parent we may come to know that it is my child's, this is the strength, as a preferred learning style. I would say take advantage of preferred style, take advantage of that, हाँ, make best use of it. स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए ज्यादा यूजफुल है कि कैसे उसको, हाँ, एकेडमिक स्ट्रेटजीज के लिए अच्छा है, स्टडी टिप्स के लिए अच्छा है, राइट? पढ़ने में टाइम कम लगा के इफेक्टिवनेस कैसे लेके आनी है उसके लिए बहुत अच्छा है, राइट? क्लियर? काइनेस्थेटिक लर्नर कौन से हुए? those who do and learn, those who do and learn, moving, doing, touch। यंग एज में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इनके लिए बहुत सजेस्टेड है। they do and learn, they visit, they experience and they learn। अब इनके साथ टर्म्स ये हो सकती हैं कि ये हाइपर एक्टिव भी हो सकते हैं। अब कोई ऐसा बोल रहा है कि आई राइट एंड आई ग्रैस्प, हम में से कोई ऐसा होगा, द वन हु वाज राइटिंग एंड ग्रैस्पिंग,
ऐसा था कोई जिसे लिख के याद होता था? लिख के ग्रेस्पिंग अच्छी थी, यस सर। राइट? हमें भी होगा, उसको भी Like काइनेटिक लर्नर बोलते हैं। these sessions, you know, I know that you will be giving the recording, but still I have a Word document open where I keep typing down something. राइट। सो अभी क्या है कि इसको भी हम काइनेटिक लर्नर बोलते हैं और उनको भी काइनेटिक लर्नर बोलते हैं, जो एक जगह टिक के नहीं बैठते, चलते चलते पढ़ लेते। दोनों काइनेटिक लर्नर है, बट दोनों की नेचर डिफरेंट है, दोनों के लिए टिप्स डिफरेंट है। आर यू गेटिंग मी? यूजुअली जो चलते चलते पढ़ता है वो लिख के याद नहीं करता, उल्टा ही है, पर है दोनों काइनेटिक। एक को फाइन ज्यादा सपोर्ट करता है और एक को ग्रॉस। तो कुछ टिप्स हमने वैसे शेयर किए हैं जब हम ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करते थे। काइनेटिक लर्नर्स के लिए इनको जरूरी है कि इन्हें, जो हाइपर नेचर के हैं, जो चलते चलते काम करते हैं, करके कुछ सीखते हैं, तो उन्हें जो क्लासरूम में नियर द टीचर बैठना चाहिए, बिठाने टीचर के पास चाहिए। अब आवाज विजुअल से कोई लेना देना नहीं, दे रिमेन कॉन्शियस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टीचर। अगर वो पीछे बिठा दिया आपने तो दे आर आउट ऑफ द व्यू ऑफ टीचर एंड दे आर कंफर्टेबल टू डू देयर नॉटीनेस एंड हाइपर एक्टिव थिंग्स। अगर आपने उसे एक विंडो के पास बिठा दिया तो उसका ध्यान कहाँ होगा? बाहर क्या चल रहा है, खेल में। सो कीप देम नियर यू द टीचर, आगे बिठाओ इनको। दूसरा, इनको रियल आइडियाज, रियल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जल्दी समझ आते हैं एज कम्पेयर टू अ theoretical concept. They do and learn. Or anything which is realistic and practical, that helps them to learn things better. इनको ब्रेक्स की ज्यादा जरूरत है। 20 मिनट्स का पोमोडोरो दो इनको, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। अगर इन्हें लगातार बिठाओगे तो ये ग्रेस्प भी नहीं कर पाते। जबरदस्ती बिठा तो लोगे बच्चे को और उसे समझ कुछ नहीं आ रहा, so they need breaks. इन्हें टुकड़ों में पढ़ने को दो, कभी भी इकट्ठा पढ़ने को दो। That type of approach. Case studies will help. Put your homework on a clipboard and complete in chunks. Chunks में complete करना है, ज्यादा काम को छोटा छोटा करके प्लेस करो। रिव्यू क्लास नोट्स एंड टेस्ट मटेरियल यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, राइट? यूज द रूम व्हाइल स्टडिंग। एक जगह नहीं बैठना है इसको, एक जगह बिठाओगे तो कंफर्ट है इसको। इफ दे they will keep changing the place, it's okay, don't be much fussy about it. ये सीढ़ियों में बैठ के भी पढ़ लेगा और उतना ही तरीके से पढ़ लेगा, राइट? मेमोरी गेम्स टू स्टडी बॉडी मूवमेंट विल हेल्प देम टू मेमोराइज थिंग्स। जैसे अगर किसी कॉन्सेप्ट को याद करना है तो अगर इसके साथ एक फिजिकल एक्टिविटी को कनेक्ट कर लेगा तो वो जल्दी याद कर पाएगा। एक्टिविटीज will help them learn things better. That is why ABL method is much more suggested. ये उनके लिए है, the one who is grossly using their body much, hypers in nature, उनके लिए स्टडी टिप्स। तो हाइपर एक्टिव्स कोई भी आएंगे आपको उन्हीं के इसी तरीके की स्टडी टिप्स देने पड़ेंगे। ना ये वीडियो वाले ना ये ऑडियो वाले, इनको करके। अब दिक्कत ये है कि हमारी एकेडमिक लर्निंग में करके करने वाली चीजें बहुत कम, ज्यादातर चीजें इधर ऑडिटरी हैं, यहाँ भी सर इनके लिए रोबोटिक्स अच्छा रहेगा। रोबोटिक्स कौन सा? रोबोटिक्स जो हमारा एक है ना, रोबोटिक्स इनके लिए वैसे तो कई चीजें, रोबोटिक्स तो अच्छा है ही इनके लिए। बाकी मैं वैसे बता रहा हूँ, रोबोटिक्स हो गया या कोई आपने मैकेनिक्स की कोई गेम दे दी या कुछ ऐसी चीजें दे दी, वो लोग कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए। बट अगर कोई साइंस किट दे दिया आपने, उसी क्लास में साइंस का वो है और घर आके उसने साइंस की कॉन्सेप्ट को कर लिया तो बेटर समझेगा, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ वीडियो और रीडिंग दैट। सुनना देखना या रीडिंग के अलावा अगर वो उसी कॉन्सेप्ट को घर आके कर लेगा तो शायद उसकी पकड़ उस पर ज्यादा अच्छी हो। अच्छा, स्कूल में एक मॉन्टेसरी मेथड भी यूज करते हैं, वो उसमें भी आई थिंक ये काइनेसिस यूज होता है। हाँ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सारी है ही इसके ऊपर बेस्ड। इतना ABL मेथड है स्टडीज का, वो सारा इसके ऊपर। ABL मेथड, आई एम सॉरी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ओके, सो मे बी across age, toddler to teens, in each age, in each class, whatever concept you learn, you can learn it through activities, whatever. तो आप जब देखते हो ना, schools are taking kids to field visits, to post office, to banks, to police station, that's all ABL, right? सर कई स्कूल एक्टिविटी बेस्ड होते हैं। सब कुछ हो भी नहीं सकता ना एक्टिविटी बेस्ड, ये भी कंसर्न है, राइट? लाइक एक तो है कि आपने किसी बच्चे को दिखा दिया कि दिस इज कीवी, छोटे बच्चे को कीवी, एक आपने कीवी काटा उसके सामने, उसे हाथ में पकड़ाया, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग कीवी पे अच्छी है, स्पेशली उसकी जो काइनेटिक है। Are you getting me?
कीवी कैसा दिखता है, इसमें छोटे 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 सीड्स होते हैं बैक, है ना? तो उसके वो कीवी रिलेटेड सारे इनपुट जो आपने दिए हैं, कीवी इज गुड फॉर इम्यून, कीवी इज गुड फॉर विटामिन सी, they everything is intact over there because they have experienced kiwi, not only seen and seen it in the picture or on a video. Understood? ये ABL का एडवांटेज है। तो ABL इनके लिए तो बहुत एडवांटेजेस है kinetic learners के। Experiential learning is there, sir. Experiential learning. Experiential learning, true that. So experiencing in a hard way, hard form, hardware form में, software form में नहीं, video form में नहीं। तो हालांकि ये हर अच्छा स्कूल आज ऑप्ट कर रहे हैं इसे, पर सब कुछ नहीं हो सकता ना। कईयों को तो उन्होंने सिर्फ रखा हुआ है, प्रमाइस नहीं पता क्यों है, क्योंकि हाँ जरूरी है फील्ड ट्रिप्स, राइट, ये चीजें जरूरी हैं, ठीक है। नॉट एवरीबडी, नॉट एवरी थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, बट दोज हु आर ट्राइंग इन, लाइक ज्यादातर ये प्री स्कूल्स में है, उसके बाद नहीं है ना? Understood? CBSE curriculum did try to include the learning styles and MI based activities all together so that every child benefited. ये तब तक नहीं होगा जब तक जो सिस्टम इसे सपोर्ट नहीं करता। अगर ICBSE कर रहा है तो सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, सिस्टम के बाद सपोर्ट दूसरी मिलनी चाहिए एडुकेटर की। एडुकेटर हैज टू बी ट्रेन्ड, करिकुलम अकेला कुछ नहीं कर लेगा। बट वहां भी यही प्रॉब्लम है, CBSE curriculum was accepted and was successful in the Dubai and Saudi countries. वहां पे एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन ब्लॉक्स नहीं है, फेल हो गया। यहाँ एक्चुअली तीन हो गए ना। एक तो सिस्टम हो गया, सिस्टम ने तो एक्सेप्टेंस दे दी, उसने तो करिकुलम बना दिया। दूसरा है जिसने सिस्टम को एग्जीक्यूट करना, टीचर, उनके मेंटल ब्लॉक्स क्लियर होने चाहिए। और थर्ड है जिसके लिए करना है। अब जिसके लिए करना अगर वही ना माने तो जबरदस्ती तो आप कर नहीं सकते, है ना? तो पता नहीं जी, खिलाते ही रहते हैं सारा दिन, बच्चे को पढ़ाते हैं। एग्जैक्टली। प्लस रिसोर्सेज भी हर स्कूल के पास, हर स्ट्राटा के पास नहीं है। रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट पेरेंट की भी बढ़ेगी इस चीज, हाँ, पेरेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो वो भी एक कंसर्न है। दैट इज व्हाई देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स दोस हु कांट, बट ऐसे कुछ स्कूल्स हैं जिन्होंने टोटली मॉडल ही इसके ऊपर क्रिएट किया हुआ, पर वो कितने हैं? इंडिया में गिनने जाऊंगा तो 25-30, very few. Sir, Waldorf method is like that, no? Which method? Waldorf method. Waldorf method is partially this approaching it, right? Partially it is addressing, but ultimately premise is same. हमने सारा मॉडल जो हमारा है, इवन ऐसा नहीं है, ब्लूम टैक्सोनॉमी इज आल्सो, वो तो हर एस्पेक्ट को ही कवर अप करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता किसी एक को। बट ये भी नहीं हो सकता कि MI, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम टोटली बदल सकते हैं। आज बड़ा धुन है एक कि अभी आई गो बैक टू जागृति's पॉइंट, अगर कोई चीज स्ट्रांग है तो यूज की जाए, पर अगर कोई कमजोर है तो उसे बिल्कुल छोड़ भी नहीं सकते ना। तो अभी कुछ स्कूल्स क्या कर रहे हैं, दे कीपिंग चाइल्ड्स लर्निंग स्टाइल्स, प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल इन माइंड, वो उसके सेक्शन बना रहे हैं, ऑडिटरी के लिए अलग, विजुअल के अलग। उससे क्या होगा, उसका एक जोन कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हम सारा फोकस ही एक पे डाल दें। उसका आपने ब्रॉडली सेक्शन ही बदल दिया, तो वो भी गलत है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे टाइम बचाने के लिए, इफेक्टिवनेस लाने के लिए अपना एज अ, तभी कह रहा हूँ इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे सिस्टम में, अगर मुझे सिस्टम ऐसे एक सिंगल स्टाइल में डाल दिया फिर मुश्किल है, क्योंकि जब मेरी जिंदगी बदलेगी, मेरा एनवायरमेंट बदलेगा, तब मुझे मुश्किल होगी। अभी तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा कल को एग्जाम है, मैंने अपनी पढ़ाई पढ़नी है, एज अ पेरेंट मैं उस चीज के एडवांटेज लूं अगर मुझे पता है। अगर मैं ये कहूं कि जी बच्चे जो हैं इनको ऑडिटरी के लिए अलग क्लास बना दो, विजुअल के लिए, काइनेटिक के लिए अलग, उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत होने वाले। पहले हमने, आज का ही स्कूल है जो सेग्रीगेट करके बैठे हुए अपने एवरेज बच्चों को, अपने बॉटम स्कोरर्स को। एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच, उसका डिसएडवांटेज ज्यादा है। What we tried was in the lesson plan only, the teacher kind of brought in a mix of all three learning styles. Because visual ज्यादा था, visual ज्यादा होता है, 40 to 50% visual, 30% kinesthetic maybe, and 20 to 30% of audio, so that every child learns somehow or the other. That is what the right approach is, क्योंकि सबका मिक्स है, सबको हर तरीके से इनपुट मिलनी चाहिए,
ऐसा भी नहीं हो सकता एक ही स्टाइल हो, उसे हर तरीके से मिलना चाहिए। अगर एक इग्नोर्ड हो गया बिल्कुल, और अगर कोई ऐसा है जो ऑडिटरी है बिल्कुल, राइट, और उसे ऑडिटरी मिले ही ना तो नुकसान है ना, और अगर कोई विजुअल है तो विजुअल मिले ही ना, तो काइनेटिक है तो काइनेटिक की अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो तीनों मिले, तीनों में से जिस तरीके से इनपुट मिलेगी। एंड देयर आर स्कूल्स जो एक ही कॉन्सेप्ट को 3 डिफरेंट तरीकों से सिखाते हैं, ऑडिटरी, विजुअल, काइनेटिक, सेम कॉन्सेप्ट। इट्स अ लेंथी कॉन्सेप्ट, बट डेफिनेटली ईच चाइल्ड विल बी गेटिंग इनपुट्स। क्योंकि दिक्कत असेसमेंट में भी है ना, कि असेसमेंट भी कई बार आपको स्कूल लेवल पे जो असेसमेंट्स हैं वो बल्क में होती है, और बल्क असेसमेंट में नुकसान, जो वेरिएशन के चांसेस है बहुत ज्यादा है कि नहीं। बल्क वाला बल्क वे में ही काम करके जाएगा ना। आप अगर किसी इंडिविजुअली किसी के साथ बैठोगे, आप उसे पर्सनलाइज टाइम दोगे, जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता है, करियर काउंसलिंग करने जाए, एक केस है तो बड़ा स्पेसिफाइड टाइम, 3 सिटिंग, स्कूल ने मेरे साथ डील कर ली, 600 रुपया 800 रुपया, तो मेरे को दे दिया उसने 500 केस, तो मैं तो देखूंगा कि बिलिंग कितनी है, उसके बाद काउंसलिंग भी वैसी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। तो ये होता है स्कूल्स में जो बल्क प्रॉब्लम में है। तो अगर कोई आप ऐसी असेसमेंट कर रहे हो तो बाद में गुंजाइश बहुत है कि आपने किसी विजुअल को ऑडिटरी में डाल दिया और ऑडिटरी को काइनेटिक में डाल दिया, तो फिर तो और मुश्किल होगी। दैट हैज टू ब्लेंडेड अप्रोच इज ऑलवेज गुड, क्रिएटिंग अ बैलेंस। पर अपनी रिपोर्ट में तीनों के बारे में बताया होगा कि इज द प्रेफर्ड स्टाइल, और तीनों की इनपुट होंगी, ऐसा नहीं कि किसी एक की इनपुट होगी, इनपुट तीनों की होगी, ऑडिटरी की भी, काइनेटिक की भी, विजुअल की भी। अगर मैं कुछ ब्लेंडेड मिल रहा है तो दोनों सजेशन। क्लियर? Any query on this? Any query? इसका जो टेस्ट, नहीं you go on, because मेरा थोड़ा ऑफ टॉपिक है, आप पूछो। जी। जो टेस्ट टूल है वो you will provide us? There are 2 type of tools, एक तो अपनी DMIT है, फिंगरप्रिंट्स, एक अपना साइकोमेट्री है। जो अपनी करियर की रिपोर्ट है उसमें भी लर्निंग स्टाइल बताता है, पर वो साइकोमेट्रिक बेस्ड है। उसमें क्वेश्चंस कौन से हैं, क्वेश्चंस पूछे हमने, और जो अपनी DMIT है वो बायोमेट्रिक बेस्ड इनपुट है। तो चैनल डिफरेंट है, आउटपुट दोनों में आती है, और दोनों की आउटपुट अलग अलग हो सकती है। एक बता रहा है कि आपका इनबाउंड पोटेंशियल किस जोन में ज्यादा है, तो वो प्रेफर्ड स्टाइल बता रहा है। एक में आप इनपुट बता रहे हो कि आपको क्या लगता है, दोनों में फर्क हो सकता है। ज्यादातर 90% चांसेस है कि सेम होगा। साइकोमेट्रिक छोटे बच्चों को नहीं आप बोल रहे, तभी तो बायोमेट्रिक की जरूरत इसलिए पड़ी है बिकॉज़ छोटे बच्चों के ऊपर साइकोमेट्रिक अप्लाई नहीं। और किसी भी इंफॉर्मेशन का एडवांटेज तब है जब वो जल्दी मिले। इन्फो के एडवांटेज भी तभी लिया जा सकता है if it's in time. If it is after time, it will not be advantageous. No value. Right? Yes. अब पूछिए मानसी। Sir, DMIT तो हम we can do it for a 6 months old kid also ना, बस fingers ही तो फिंगरप्रिंट आने चाहिए, चाहे 6 महीने वाले। हाँ। अच्छा, so my other question was all the books that you provided us, so हम उनको सुन भी सकते हैं, right? You're saying we can just download a tool and then they can be heard also? No, those can't be heard. नहीं कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के आपको कई एप्स हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करो, मैं चेक करता हूँ। पर नए जितने आ रहे हैं ना, अडोब का जो नया वर्जन है, वो आपको फीचर दे रहा है कि वो किसी पीडीएफ को पढ़ा, पर कुछ पीडीएफ बनी इसलिए हैं जिसमें वो इजी है पढ़ना, उन्हें डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि रीडिंग, वो ऑटो रीड सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं उसे। हर पुरानी बुक नहीं, क्योंकि उसमें कईयों में जो फॉन्ट है वो रीडेबल नहीं है उनके लिए, सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, या पिक्चर्स बहुत हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रिंट में डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहां दिक्कत है। एंड अडोब के जो पेड वर्जन होंगे वो ऑडिबल होंगे ना, या ऑल ऑफ देम? नहीं, दूसरे फ्री वर्जन में भी है, फ्री वर्जन में भी। आपको थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी। लेट मी फाइंड दैट सर्टेन एप्स व्हिच हेल्प्स इन रीडिंग अ पीडीएफ। यू कैन रीड द सॉफ्टवेयर विल बी रीडिंग अ पीडीएफ फॉर यू। राइट, चलो, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Good night. Good night.